Hello student, my name is Neha Miglani. Today I am going to start the topic of demand forecasting part 3. It is my third video on this topic of demand forecasting. In my two previous videos, I have already discussed the qualitative methods of the demand forecasting, and we have completely through about the what are the qualitative methods of the demand forecasting. In this video we are going to discuss the one method of the statistical techniques with the help of example or maybe with the help of the any other things. Thank you. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Divakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from Divakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. Before starting my video, I will give the review about the meaning and definition of the demand forecasting. Demand forecasting means forecast the demand for the future. एक प्रोड्यूसर हमेशा यही चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड कितनी रहेगी, उसके बारे में वो हमेशा जानना चाहेगा। तो वो डिमांड को पता करना कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आएगी, ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे कि इन एडवांस में कि अपनी जो सप्लाई को वो रेगुलर कर सके, रॉ मटेरियल को अच्छे से बाय कर सके, ताकि उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड को वो शॉर्टफॉल ना कर सके। इसको हम डिमांड फोरकास्टिंग कहेंगे कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने की हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है विद द हेल्प ऑफ द पास्ट और विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट डाटा। सो we have discussed the two types of the demand forecasting या methods of the demand forecasting, and there is one is opinion polling method and second is statistical method. We have give the brief view about the opinion polling methods, and we have already discussed the three types of the opinion polling method. First one is the consumer survey method, second is the Salesforce opinion method, and third is expert opinion method. Now we are going to discuss the statistical method of the demand forecasting. Statistical means mathematical formulas in which type of method in which there are used of various mathematical formulas to forecast the demand, and it will give the more accurate result as compared to the opinion polling methods. So statistical methods are further classified into the four types, four methods. First one is trend projection method, and second is barometric method, and third is regression method, and fourth one is simultaneous equation methods. So first one is our trend projection method, which is further classified into five types. First one is a fitting trend line by the observation, and second is least square linear regression, and then time series analysis, and then moving average and annual differences, and last one is the exponential smoothing. Okay, so we are going to cover the first method of the trend projection method is the fitting trend line by the observation. So before discussing this, firstly we will give the view about the statistical method. So what is statistical method? Statistical method are also called the quantitative techniques method, and they are also called the analytical methods. So these are the forecasting technique that make use of historical quantitative data. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपना पास्ट का डाटा यूज़ करते हैं। पास्ट का जितना भी क्वांटिटेटिव नंबर फॉर्म्स में हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा उसको यूज़ करके हम फ्यूचर की डिमांड को फॉरकास्ट करेंगे। ए स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू द एग्जिस्टिंग डाटा in order to generate the predicted demand in the forecast period.
ये जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट सारे होते हैं, इनमें क्या होता है, हम पास्ट का डाटा प्लस प्रेजेंट का डाटा यूज़ करके फ्यूचर की प्रोडिक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट formulas, and basically various formulas are given under this method, and we will use these formulas and forecast the demand for the future. So these methods are divided into 4 types. First one is the trend projection method, and second is barometric method, and third is regression method, and fourth is econometric method या simulation equation method. Every method have 1 to 3 names, so don't confuse about these names. What are these type of method? When we are going to cover one method, I will give you about the another name of the this method also, so don't confuse in this. So first we are going to cover is the trend projection method. It is an old form method which can use its own data of past year regarding sales in past year. ये एक बहुत ही पुराना मेथड है, इसमें बहुत ही पिछले कई सालों की सेल्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है और जो पिछले सालों में कलेक्ट किया होता है उनको यूज़ ये मेथड करता है. दिस डाटा आर नोन एज टाइम सीरीज ऑफ सेल्स. इसको हम टाइम सीरीज ऑफ सेल्स मेथड भी कहते हैं. सो दिस इज अनदर नेम ऑफ ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड इज द टाइम सीरीज सेल्स ऑफ सेल्स मेथड. क्यों सेल्स सीरीज मतलब इट विल कंटेन द डाटा या रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स सेल्स एंड अज्यूम दैट पास्ट ट्रेंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. और ये चीज़ अज्यूम करके चलता है जो कि पास्ट में जो ट्रेंड चल रहा है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा. सो पास्ट ट्रेंड इज एक्स्ट्रापोलेटेड. जो हम पास्ट ट्रेंड को उसको एक्स्ट्रापोलेटेड करते हैं जिसको हम जनरलाइज कहते हैं. मतलब क्या है कि एक्स्ट्रापोलेट मतलब कि उसको ही सच मान के चलते हैं. ठीक है. सो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या है कि भाई ये प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड चलता आ रहा है उनके रिकॉर्ड को चेक करेगा और फ्यूचर की प्रेडिक्शन देता है. ठीक है. हम पुराने 10 सालों का डाटा ले लेते हैं और उनमें से देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी रही है, तो उनको वो कंसीडर करके आगे फ्यूचर के लिए डिमांड हम निकालते हैं. सो इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू. तो बहुत सारे मेथड है, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द ग्राफिकल मेथड एंड देन लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड देन टाइम सीरीज मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड. आज जो है हम ग्राफिकल मेथड को कंसीडर करेंगे. सो व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड? बिफोर डिस्कसिंग द ग्राफिकल मेथड, सो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड को फिर से रिव्यू करते हैं विद अनदर थिंग्स के थ्रू. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट सेल. जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको पहले ही बताया है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि पास्ट की सेल्स को लेके चलता है. ए फर्म विच हैज़ एग्जिस्टेंस फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. एक फर्म जिसकी जो एग्जिस्टेंस बहुत सालों से चलती आ रही है तो वो इन मेथड्स को यूज़ करके चलते हैं क्योंकि उनके पास अपने प्रीवियस ईयर की सेल्स का रिकॉर्ड होता है. सच डाटा इज़ अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली. ये जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया गया होता है वो क्रोनोलॉजिकल एक सीरीज़ फॉर्म में जो है रिकॉर्ड करते हैं और विद इंटरवल ऑफ टाइम के साथ. दिस इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़ मेथड. तो इनको हम टाइम सीरीज़ मेथड कहते हैं. सो टाइम सीरीज़ मेथड में जो होते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द सेकुलर ट्रेंड, थर्ड इज सीजनल एंड थर्ड इज साइक्लिकल एंड फोर्थ इज रैंडम वेरिएशन. सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जब वो एक सीज़न के थ्रू मतलब एक प्रॉपर वे से रन करता है. जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10 इकट्ठा सेम वे में लेते हैं. सीजनल वेरिएशन में क्या आता है? जैसे कि हमने जनवरी 2001 ले लिया, फिर दूसरा क्या नाम है अक्टूबर 2001 ले लिया, फिर जनवरी 2006 का डाटा ले लिया, फिर अक्टूबर 2006 का डाटा ले लिया. इस तरीके से मतलब एक सीजनल फॉर्म में जब हम डाटा लेते हैं. साइक्लिकल वेरिएशंस में क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो साइकिल की तरह होता है. साइकिल की तरह मतलब क्या है कि आप जो है ऐसे डाटा लोगे जिसमें आपकी सेल कम भी हो रही थी और जिसमें आपकी सेल ज़्यादा भी हो रही थी. मतलब आप क्या है सीरीज़ फॉर्म में डाटा नहीं लेके चलते हो, आप टुकड़ों में डाटा लेके चलते हो. जैसे 2001 का डाटा ले लिया, फिर 2003 का डाटा ले लिया, 2002 को छोड़ दिया, फिर 2005 का ले लिया, 2004 को छोड़ दिया डाटा को. तो इस तरीके से आप लेते हैं. रैंडम वेरिएशन में क्या होता है
कि आप कोई भी एक बेसिक एक कंपोनेंट के अजम्पशन के थ्रू नहीं चलते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी साल का डाटा ले लो। तो जैसे मैंने 1998 का डाटा ले लिया, बाद में सीधा 2006 का डाटा लिया, बाद में 2010 का डाटा ले लिया, फिर 2012 का ले लिया, 2015 देन 2020 का डाटा ले लिया। मतलब मैंने अपनी मर्जी से, मेरे को जो भी रैंडम वेरिएशंस मिल रही है, रैंडमली डाटा अवेलेबल हो रहा है, वैसे वैसे मैं डाटा ले रही हूँ। उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएशन। सो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सेकुलर में क्या होता है, यू विल गेट द सीरीज वाइज डाटा। सीजनल वेरिएशंस में क्या होता है, एक आप पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग जैसे 6 महीने का आप डाटा लेके चलते हो, ठीक है। साइक्लिकल वेरिएशंस में क्या होता है कि आप अप एंड डाउन सिचुएशन वाला डाटा लेके चलोगे। मीन जहाँ पे आपकी सेल्स अप हुई थी उस डाटा को भी लोगे, और आज जहाँ पे आपकी सेल्स जो है वो डाउन हुई थी उस डाटा को भी लेके आप चलोगे। रैंडम वेरिएशंस में क्या होता है, जब आपका जो डाटा है आप रैंडमली लेते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपके पास पूरे सालों साल का रिकॉर्ड हो, आपके पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा उसके थ्रू आप अपना डाटा लेके चलोगे। सो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में सबसे पहला मेथड हमारे पास आ जाता है, वो है ग्राफिकल मेथड। एज पर द नेम सजेस्ट, व्हाट इज़ ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मीन्स ग्राफ के थ्रू जब आप ट्रेंड लाइन बना के चलते हो। सो ए ट्रेंड लाइन कैन बी फिटेड थ्रू ए सीरीज ग्राफिकली। आप जब एक ट्रेंड लाइन फिट करते हो अपने ग्राफ पे, और उसके थ्रू आप मूवमेंट को चेक करते हो कि आपका डाटा किस तरीके से, आपका जो है सेल्स किस तरीके से चली थी, उसके थ्रू आप आगे फ्यूचर की फोरकास्टिंग करोगे। सो द डायरेक्शन ऑफ द कर्व शो द ट्रेंड। जैसे कि आपके कर्व की डायरेक्शन होगी, शेप होगी, वो आपके ट्रेंड को शो करती है। सो उसके थ्रू ही आपका फर्दर आगे नेक्स्ट ईयर का आपको एस्टिमेशन मिल जाता है। जो मेन ड्रॉबैक होता है इस मेथड में वो क्या होता है कि वो एक्यूरेट मेज़र नहीं देते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ये मैंने एक ग्राफिकल एग्जांपल ली हुई है। ग्राफ में क्या है, जैसे मैंने, देखो आप ध्यान से, मैंने एक टेबल लिया हुआ है जिसमें मैंने डाटा लिया हुआ है 1995 का, 1995 का है, फिर 1996 का है, 97, 98 एंड 1999 एंड 2000 का। मैंने 6 ईयर का डाटा कंसीडर किया है, सेल्स ली है। ये मेरी सेल रही है 40, 50, 44, 60, 54 एंड 62। फिर मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो है अपनी सेल्स मैंने इस साइड ली हुई है, ठीक है, मैंने सेल्स इस साइड ली हुई है, और यहाँ पे मैंने अपना ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जो मेरे पॉइंट्स आएंगे उसके थ्रू मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिए। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मैं एक ट्रेंड लाइन को फिट कर दूंगी, उसके थ्रू मेरी फ्यूचर की फोरकास्टिंग हो जाएगी। दिस इज़ आवर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होती हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। एडवांटेजेस हमारे क्या होंगे इसमें, मेन एडवांटेजेस हमारे होते हैं इसमें कि दिस मेथड इज़ सिंपल टू यूज़। ये मेथड बहुत ही सिंपल होता है यूज़ करना। सो एक और चीज़ है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, ठीक है, आपको एक्यूरेट और रिजल्ट मिल जाता है, और इनएक्सपेंसिव है, आपको ज़्यादा कॉस्ट लगानी नहीं पड़ती है। इट डजेंट रिक्वायर द फॉर्मल नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एन इनअप्रोप्रिएट मेथड फॉर द शॉर्ट रन फोरकास्ट। ये मेथड शॉर्ट रन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। शॉर्ट रन के लिए हमें क्वालिटेटिव मेथड्स को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेजेस भी इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला डिसएडवांटेजेस है, इट अज्यूम द पास्ट डाटा एंड चेंजेस इन द वेरिएबल विल रिमेन द सेम इन द फ्यूचर। जो ये हमारे पास्ट के डाटा को लेके चलेगा, और जो भी वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है वो सेम मान के चलेगा। मतलब हम इसमें प्री एजम्पशंस लेके चलते हैं कि हमारा जो फ्लो है जैसे चल रहा है वो फ्यूचर में भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी, मैं आपको एक लाइव वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जैसे सेल्स फॉर्म हमने ये लिए है, सेल्स ऑफ द फॉर्म लिया है, ठीक है। सेल्स में मैंने 95 से लेके 2000 तक का डाटा लिया है। ये मेरा 6 ईयर का डाटा है। इसमें मेरे जो भी इनमें जितनी भी सेल्स आई है उसको हमने लेके चले हैं, ठीक है। सेल्स मेरी जैसे आई है 40, 50, 44, 60, 54 एंड 62। अब जो है ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको मैं एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँगी। मैंने ये ग्राफ बनाया, ये मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने अपने ईयर्स लिए, और यहाँ पे मेरा जो है सेल्स का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो ये मेरे ईयर्स है 99 का, ठीक है, 5 का डाटा लिया है तो 95, एंड देन मेरा डाटा है 96, एंड देन 97,
97 and then 98 then 99 and then 2000. ठीक है, यहाँ पे मेरी सेल्स होगी, सेल्स 40 से स्टार्ट हो रही है तो 40 45 50 55 60 एंड देन 65. ठीक है, मैंने इस तरीके से अपने सेल्स डाटा लिए. 95 में जो है सेल 40 थी तो ये मेरा पॉइंट हो गया यहाँ पे. उसके बाद 96 में 50 की सेल थी तो ये मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ को आ गया. ठीक है, उसके बाद मेरी सेल थी 97 में 44. 97 में जो सेल थी वो 44 यहाँ मेरा आ गया पॉइंट. देन 98 में 60 का थी, 98 में 60 की थी सेल. एंड देन 99 में जो 54 की सेल थी, 99 में जो है 54 की सेल थी. ये मेरा आ गया. 2000 में 62 की सेल थी, 2000 में 62 की सेल थी. ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स बन गए. इसको हमने प्लॉट किया मैच करके. ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स बन गए. अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करना है. ठीक है, ये हमारी क्या आती है, जब हम ये फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जब हम फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जब हम मैचिंग करते हैं तो ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ट्रेंड लाइन. ये आगे से ऐसे सीधा क्रीप पे जा रही है तो आगे भी ये ऐसे ही जाएगी. ये हम प्रिडिक्शन करके चलते हैं, उस हिसाब से हमारी सेल इंक्रीज़ करेगी. तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि हमारी जो सेल है वो बढ़ेगी इन फ्यूचर में भी. ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे होते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शंस. इनको हम बोलते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन. और इनको जब हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारी होती है ट्रेंड लाइन. So this is all about our today topic, and I hope you will all understand what is the graphical method, and it is very simple and easy method to use for the statistical technique. And in this no basic economic knowledge is required, and also it is also an inexpensive method. So I hope you will all understand what is statistical method and what are the quantitative methods. In our next video we are going to discuss the second method of the trend projection method, is the least squared method. We will discuss with it with the help of the example also. Thank you so much.